Assalamu alaikum to all students. How are you? I hope all students are fine and they all are very much happy. So guys, this is the video from the school of the Peace School, and in this video we people are just going to start the next chapter. The name of this chapter is The Ransom of Red Chief. My dear, this chapter is going to be very much interesting and all people are going to enjoy. And I will teach you this chapter with a translation. Means मैं आपको ये chapter पढ़ाऊंगा translation के साथ. So it will be very much helpful for you to understand. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा ताकि आप इसको समझ सकें. My dear students, the name of this chapter is The Ransom of Red Chief. You people must be thinking that what is the meaning of ransom? My dear, ransom means when we kidnap someone and we demand some money, so that money is called ransom. Means किसी को जो है कुछ लोग अगवा करते हैं और उसकी मद में जो पैसे मांगते हैं उसको बोलते हैं ransom, जिसको हम उर्दू में तावान कहते हैं. तो the ransom of Red Chief. अच्छा, वो is Red Chief? Red Chief कौन है? In this story, Red Chief is the name of the boy who is very much naughty, जो कि बहुत ही शरारती है और उसको अगवा किया गया है. और फिर अगवा करने के बाद जिन्होंने अगवा किया है वो लोग उसके फादर से पैसों का मुतालबा कर रहे हैं. Let's start. My dear, first we will discuss some new words and after that we will start the story. पहले हम कुछ new word discuss करेंगे, फिर हम story start करेंगे. You can see the first word is accede. How will you pronounce accede? Accede means to agree to a demand or request. Means कोई आपसे demand करे और आप उससे राजी हो जाएं, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लें, तो उसको बोलते हैं एक्सीड. नंबर 2, बगी. बगी मीन्स अ हॉर्स ड्रॉन कार्ट. अक्सर घोड़ों के पीछे एक इस तरह की चीज लगी होती है जिसपे जो है लोग मुसाफिर सवार होते हैं या घोड़ा चलाने वाला सवार होता है, उसको बोलते हैं बगी. नंबर 3, काउंटर प्रोपोजिशन. एन ऑफर मेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ प्रीवियस वन. मीन्स इट मीन्स के कोई तजवीज दी जाए और उसके अगेंस्ट में उस तजवीज में कुछ चेंजिंग करके बोला जाए, तो उसको बोलते हैं काउंटर प्रोपोजिशन. गेटिंग? कि मैं आपको कोई बात बोलूं, आप बोलें ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, तो उसको बोलेंगे काउंटर प्रोपोजिशन. नंबर 4, फोरक्लोज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरक्लोज? टू टेक बैक अ प्रॉपर्टी दैट वाज बॉट विद बोरोड मनी. मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उधार के पैसों से ली गई थी, जब उसको हम वापस ले लेते हैं या बैंक अक्सर ऐसा करता है, नीलाम करता है, तो उसको बोलते हैं foreclose. Next, mortgage. Mortgage a loan usually taken when buying property. जो लोन लिया जाता है जब हम बैंक से लोन लेते हैं, तो जो चीज हम रखवाते हैं उसको बोलते हैं mortgage. Okay, a loan usually taken when buying property. Next, prominent. Prominent, important and well known. बहुत ही खास और जाना जाने वाला, मतलब मशहूर. Next, provisions. Provisions means food, drink and equipment. मतलब जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं उसको बोल देंगे provisions. Next, scout. Scout means a soldier or other person sent out to investigate. मतलब वो लोग जिनको जो soldiers होते हैं उनको बाहर भेजा जाता है ताकि वो तहकीक करें किसी मसले पे. Next is subjugation. Subjugation means to be brought under complete control. मतलब किसी चीज को फतह कर लेना, उसको बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले लेना, शिकस्त दे देना. This is called subjugation. Next, yes, next one is surreptitious. Surreptitiously, you people can pronounce with me. Surreptitiously. Surreptitiously means without being noticed. मतलब किसी के नोटिस में आए बगैर, secretly, खामोशी से. Okay. Last one is treachery. Treachery means betrayal of trust. मतलब किसी के ट्रस्ट को तोड़ना या फिर धोखा देना. I hope you people have understood. उम्मीद है आप समझ चुके होंगे. अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि what is the story? The Ransom of Red Chief. This is very much interesting. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और आप लोग इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं. Let's start. My dear, you can see in your books as well. This is the starting of the story. I will read and I will translate. We were down south in Alabama. Bill Discole and myself. Means the first character name is Bill and myself.
When this kidnapping idea struck us, मीन्स वो ये बता रहे हैं कि हम लोग साउथ एलाबामा में थे जब मेरे और मेरे दोस्त के माइंड में ये आइडिया आया कि हम उस बच्चों को किसी को किडनैप करते हैं. बिल एंड मी हैड अबाउट $600. हमारे पास $600 थे एंड वी नीडेड जस्ट $2,000. हमें $2,000 की ज़रूरत थी मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न. वी और हमें $2,000 की ज़रूरत थी. Yes, so we needed $2,000. हमें 2,000 की ज़रूरत थी at that time. Some land in Western Illinois. S is silent over here. It's the name of the place. We figured that family love is strongest in semi-rural communities. Semi-rural communities में जो है वो family love जो होता है वो बहुत ज़्यादा strong होता है. मतलब वो अपनी family से बहुत प्यार करते हैं. And decided to do our kidnapping इन सुमिट. और हमने डिसाइड किया कि हम अपनी किडनैपिंग करेंगे कहाँ पे? सुमिट में. ऐसे सुमिट का मतलब होता है हाई हिल्स, कोई पहाड़ी इलाका काफ़ी ऊंचाई पे. दैट इज कॉल्ड सुमिट. उसे हम सुमिट कहते हैं. अ स्मॉल टाउन. तो स्मॉल टाउन का नाम क्या था? सुमिट. वी सिलेक्टेड आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड फॉर अ प्रोमिनेंट सिटीजन. मतलब किसी भी अमीर शख्स का बच्चा होगा जिसको हम अगवा करेंगे. सिटीजन नेम एबेनेजर डॉर्सेट. अब उस शख्स का नाम क्या था? एबेनेजर डॉर्सेट के बच्चे को हम अगवा करेंगे. मिस्टर डॉर्सेट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ. वो जाने जाते थे अपने अमीरी की वजह से. विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्गेजेस, जो उन्होंने बनाई थी उधार दे दे के मॉर्गेज. एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स. अच्छा, मेकिंग फोरक्लोजर्स मीन्स जब कोई उधार नहीं दे पाता था तो डेफिनेटली वो उसकी ज़मीन छीन लेते थे क्योंकि डेफिनेटली एक कमिटमेंट होती थी कि भाई आप पैसे देंगे, आप उधार ले रहे हैं. अब वो वापस नहीं कर पाता था तो वो उसकी लैंड ले लेते थे. दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच रिच. वो बहुत अमीर थे. द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10. वो 10 साल का बच्चा था. विथ फ्रैकल्स. फ्रैकल्स बोलते हैं बेटा आप फेस पे डॉट्स होते हैं ब्राउन कलर के, वो कहलाते हैं फ्रैकल्स. एंड ब्राइट रेड हेयर्स. और उसके ब्राइट जो है वो रेड हेयर्स थे, लाल बाल. बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबेनेजर. हमने अंदाजा लगाया कि एबेनेजर वुड अग्री टू पे अ रैंसम, कि वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा. ऑफ $200 दे देगा. बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड. लेकिन मैं आपको बताता हूं असल में हुआ क्या. About 2 miles from Summit was a little tree covered mountain. 2 miles दूर सुमिट से वहाँ पे एक ट्री था जो कि कवर्ड था किससे? माउंटेन से. On the rear slope of this mountain was a cave. और वहाँ एक केव था. There we stored प्रोविजंस मीन्स खाने पीने की एशिया हमने वहाँ पे जाके स्टोर कर दी कि हम जब बच्चे को अगवा करेंगे तो उसको वहाँ लेके चले जाएंगे. ठीक है. वन इवनिंग वी ड्रोव इन अ बगी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस. अब मैंने क्या किया कि मैंने एक घोड़ा लिया और जो है उसमें मैं सवार हुआ. मतलब बगी उसके पीछे जो एक जगह बनी थी जिसमें हम सवार होते हैं. और मैं उसके घर के पास गया, डॉर्सेट हाउस. द किड वॉज इन द स्ट्रीट. बच्चा जो है वो गली में था. throwing rocks at a kitten on the opposite fence. और वो पत्थर मार रहा था एक बिल्ली के बच्चे को जो कि उस पार था. फेंस मतलब जो बॉर्डर बनाया जाता है लकड़ियों से जानवरों को उस पार रखने के लिए, दैट इज कॉल्ड फेंस. Hey, says Bill. बिल ने कहा, hey, would you like some candy? क्या तुम्हें कुछ टॉफीज चाहिए? The boy threw a piece of bricks at Bill's head. अब बच्चे ने क्या किया कि वो बात सुनने के बजाय उसके सर पे पत्थर मारने शुरू कर दिए. That boy put up a fight और लड़ना शुरू कर दिया. But eventually means आखिरकार. But eventually we got him in the buggy. लेकिन हमने उसको पकड़ लिया और बगी में बिठाया. And drove up to the cave. और हम केव की तरफ, मतलब जहाँ पे हमने अपनी जगह बनाई थी उस गार की तरफ रवाना हो गए. After dark I drove the buggy. मतलब रात होने के बाद जब काफ़ी अंधेरा हो गया मगरिब के बाद, I drove the buggy back to the village I had hired it in and walked back. तो मैंने बगी उस गांव में वापस कर दी जहाँ से मैंने ली थी और फिर मैं वापस चला गया उसी जगह पे जहाँ बच्चा था.
Bill was examining and treating the scratches. बिल क्या कर रहा था, अपने स्क्रैचेस देख रहा था. जब उसने बच्चे को पकड़ा था तो बच्चे ने काफी सारे स्क्रैचेस उसके बॉडी पे डाल दिए थे, एंड ब्रूजेस, और नील भी पड़ गए थे, ऑन हिज फेस एंड लेग्स, उसके चेहरे पे और लेग पे. There was a fire burning in the cave. अब हमने वहां पे आग जलाई. You people can see in the picture. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जिस तरह वो लोग एक गार में बैठे हुए हैं और उन्होंने आग भी जलाई हुई है. In the cave, and boy was sitting by it. और जो बॉय है वो उसके बराबर में बैठा हुआ था. With two buzzard. Buzzard is the name of the bird. It is a bird in the America. And tail feathers. उसके जो काफी बड़ा बर्ड होता है तो उसके जो पर होते हैं उसको बोलते हैं feathers. परों को फीदर्स बोलते हैं. फीदर्स स्टक इन हिज हेड हेयर. और उसने दो पर जो है वो अपने बालों में लगाए हुए थे. यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं. ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज. अब बच्चे ने क्या किया, मेरी तरफ एक स्टिक लकड़ी उसके हाथ में थी, वो मेरी तरफ की और क्या कहा, हे कर्ड्स पेल फेस. कर्ड्स पेल फेस मीन्स स्टूपिड. ओके, पेल फेस, डू यू नो डेयर टू इंटर रेड शेफ कैंप. तुमने कोशिश की है कि हमारे रेड चीफ्स, उसका नाम था चीफ्स के कैंप में दाखिल होने की. Here's all right now, says Bill. बिल ने कहा कि अब सब ठीक है. We are playing Red Indian. तो हम क्या खेल रहे हैं, Red Indian. This is the game in Europe side they people play Red Indian. I am old Hank. मतलब मैं एक old Hank बना हुआ हूँ. Hank मतलब एक कैदी बना हुआ हूँ. Red Chief's captive. Captive means prisoner, एक कैदी. And I am to be scalped. Scalp बोलते हैं कि जब पुराने ज़मानों में जब सज़ा दिया करते थे तो उनकी जो खाल है उसको उतार दिया करते थे, तो उसको बोलते हैं स्कैल्प. स्कैल्प एल डे ब्रेक. मतलब मुझे जो है वो सज़ा दी जाएगी, मेरी खाल उतारी जाएगी डे ब्रेक में. आउच, दैट किड कैन किक हार्ड. अच्छा, वो बच्चा उससे खेल रहा था और उसको मतलब तंग कर रहा था कि वो एक तरह का गेम खेल रहे थे कि भाई तुम जो है तुमने मेरे कैंप में दाखिल होने की कोशिश की है और मैंने तुम्हें पकड़ लिया और अपना कैदी बना लिया, अब मैं तुम्हें मार रहा हूं. द बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी. और बच्चा बहुत खुश लग रहा था. द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट. वो सब कुछ, जब हमने जो कैंप बनाया था, यहाँ पे आग लगाई हुई थी, तो इसने बच्चे को सब कुछ भुला दिया था. He was a captive. वो बच्चा एक कैप्टिव था, मतलब हमने उसको अगवा किया हुआ था. He immediately named me Snake Eye. उसने क्या नाम दिया बिल को, Snake Eye, मतलब सांप की आंखों वाले. The spy. Spy means जासूस. And announced that I was to meet my end the next day. मतलब अगले दिन मुझे सजाए मौत दी जाने वाली है और मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग खेल रहे थे. देन वी हैड सपर. फिर हमने खाना खाया. ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट. उस बच्चे ने अपना मुंह भर लिया गोश्त से, मीट, ब्रेड, रोटी से, एंड ग्रेवी, ग्रेवी से, ग्रेवी मीन्स सालन से, एंड टॉक्ड. और फिर उसने क्या कहा, हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस. वो इस तरह की बातें कर रहा था, मतलब वो बच्चा खेल रहा था तो इस तरह की बातें कर रहा था. आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर. मैंने इससे पहले कभी कैंप नहीं किया. इट इज अ फन. ये बिल्कुल फन है कैंप लगाना. बट आई हैड अ पेट वंस. मेरे पास एक दफा पालतू जानवर था. एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे. मैं 9 साल का था लास्ट बर्थडे पे. आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस. क्या यहाँ रियल रेड इंडियंस हैं इन दीज वुड्स. I want some more gravy. मुझे और सालन चाहिए. Do the moving trees make the wind blow? क्या ये जो ट्रीज होते हैं इनके हिलने से बहुत तेज हवा चलती है. We had 5 puppies. हमारे पास 5 puppies थे. What makes your nose so red? किस चीज, मतलब क्या चीज जो है वो तुम्हारी नाक को लाल कर देती. Hank, My father has lots of money. मेरे फादर के पास बहुत सारा पैसा है. Are the stars hot? क्या ये जो सितारे हैं ये बहुत गर्म होते हैं. Do oxen, क्या जो बैल होता है, make any noise, क्या वो कोई शोर मचाता है. Why oranges round? ये ऑरेंजेस जो होते हैं ये गोल गोल क्यों होते हैं. मतलब वो बच्चा छोटा था 10 ईयर्स का, और डेफिनेटली 10 साल का बच्चा इस तरह की बातें करता है. वो ऐसी बातें किया जा रहा था. A parrot can talk. एक तोता बातें कर सकता है. But monkey and a fish can't. लेकिन एक monkey और fish बातें नहीं कर सकते. Every few minutes he would remember that he was Red Indian. वो उसको याद दिला रहा था कि हम खेल रहे हैं बार बार और मैं क्या हूँ, Red Indian हूँ और तुम मेरे कैदी हो. Okay? So it was going on among them. Yes, Red Indian, and would let out a
war, whoop. We pronounce whoop and we also can pronounce whoop. It means कि एक झड़प, हम एक झड़प करते हैं मतलब लड़ाई करते हैं. That made old Hank shiver. जो कि शिवर मतलब कपकपाना, जो जिसकी वजह से जो ओल्ड हैंक है जो कि बिल बना हुआ था तो वो कपकपाने लग जाएगा. द बॉय हैड बिल टेरोटाइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट. अब वो जो बिल है, वो जो बच्चा है, वो शुरू से ही उसको बहुत परेशान कर रहा था. किसको? बिल को. आई सेज किड वुड यू लाइक टू गो होम. क्या तुम घर जाना चाहोगे? उसने पूछा. ओ What for? क्यों? Says he. अब उसने कहा क्यों? I don't have any fun at home. I hate school. I like camping. You won't take me home. Snake eye, will you? मतलब वो कहने लगा कि भाई मैं क्यों घर जाऊंगा, वहां पे तो कुछ मजा ही नहीं आता और मुझे स्कूल जाने से नफरत है, मुझे कैंपिंग पसंद है. I want to you won't take me home. तुम मुझे घर लेके नहीं जाओगे. क्या लेके जाओगे? नॉट राइट अवे सेज आई. उसने कहा कि नहीं, अभी लेके नहीं जाऊंगा. ये सेज ही. आई नेवर हैड सच फन इन माई ऑल लाइफ. अब बच्चा जो है वो ये समझ रहा था कि हम भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उसने कहा कि मैंने इस तरह कभी इंजॉय किया ही नहीं है. एट अबाउट 11 o'clock वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट. हमने ब्लैंकेट बिछाया एंड वेंट टू बेड. और मतलब हमने सोने की तैयारी की. रेड चीफ kept us awake. लेकिन रेड चीफ ने हमें उठाए रखा for 3 hours, jumping up. वो हम पे उछलता रहा and reaching for his rifle and screeching in our ears. मतलब वो उसने क्या किया, उसने जो है वो किसी चीज़ को राइफल बनाया था और वो स्क्रीचिंग कर रहा था हमारे कानों में, मतलब शोर कर रहा था. As each crackle of ट्विक बोलते हैं एक पत्ते के तने को, जो छोटा सा एक मतलब एक दरख्त के तने को वी पीपल से ट्विक दरख्त ऑफ अ ट्विक. और द रसल इज इट इज कॉल्ड अ वॉइस मतलब अ वॉइस ऑफ लीफ. जब आप पत्तों पे चढ़ते हैं तो उसमें से जो आवाज आती है, दिस इज कॉल्ड रसल ऑफ अ लीफ. मेड हिम इमेजिन दैट आउटलॉस आर अप्रोचिंग. मतलब कहने का ये है इस लाइन में कि वो क्या कर रहा था, वो बार बार तंग कर रहा था, वो उछल रहा था. और जैसे जैसे वो बच्चा चलता तो डेफिनेटली क्या होता है, पत्तों की आवाज़ आती है ना जब हम पत्तों पे पाँव लगता है. तो वो इस तरह का बिहेव कर रहा था कि जैसे जो उसको उसके दुश्मन उसके करीब पहुंच रहे हैं. आउटलॉस एनिमीज वर अप्रोचिंग. एट लास्ट आई फील इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप. उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से मैं सो गया. एंड ड्रीम दैट, और मैंने ख्वाब देखा that I had been kidnapped and chained to a tree. कि मुझे किडनैप कर लिया गया है. मतलब बिल बोल रहा है कि ऐसा लगा कि मुझे किडनैप कर लिया गया और चेन टू अ ट्री, और मुझे एक चेन से बांधा हुआ है बाय अ फेरोशियस डेंजर पायरेट विद रेड हेयर, जिसके लाल बाल हैं. जस्ट अ डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला, आई वॉज अवेकन बाय ऑफुल स्क्रीमिंग. अजीब सी आवाज ने मुझे उठा दिया फ्रॉम बिल. I jumped up to see what's the matter was. Red Chief was sitting on Bill's chest. तो Red Chief जो था वो क्या था, वो बिल के चेस्ट पे मतलब सीने पे बैठा हुआ था. Holding him by the hair, और उसके बाल पकड़ा हुआ था. In his other hand he had the sharp knife, और उसके दूसरे हाथ में एक बहुत तेज नाइफ मतलब चाकू था. And he was seriously trying to take Bill's स्कैल्प. मतलब वो सीरियसली उसकी ऐसा लग रहा है जैसे खाल उतारने वाला है. एज ही हैड प्रॉमिस्ड द इवनिंग बिफोर, जैसे बच्चे ने मजाक में बोला था कि कल तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी, तो वो अब रियल में ऐसा लग रहा है कर रहा था. आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड. मैंने चाकू लेके दूर फेंका. एंड मैड हिम लाई डाउन मीन्स रेस्ट. उसको कहा पे रेस्ट करो अगेन. बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन. लेकिन जो बिल्स की जो नींद थी वो टूट गई. he laid down on his side of the bed but he never closed an eye again. लेकिन बिल दोबारा सो नहीं पाया. in sleep as long as that boy was with us. जब तक वो बच्चा हमारे साथ था हम बहुत परेशान थे, और बिल तो स्पेशली परेशान थे क्योंकि वो जो बच्चा है, ये दो कैरेक्टर्स है इसमें, एक बिल है एक सैम है. तो बिल के साथ ये बच्चा खेले जा रहा है. ain't it awful, ये इतना बहुत बुरा एक्सपीरियंस है. बिल ने कहा सैम से, सैम no one will pay money to get a little imp. Beta, imp means a naughty child. Imp means a very naughty and misbehaved child. It's called imp.
लाइक दैट बैग, मतलब वो बोल रहा है कि कोई भी पैसे नहीं देगा इस तरह के बच्चे को वापस लेने के। उसको ऐसा लगा कि भाई इसके फादर तो कभी पैसे नहीं देंगे, बल्कि उसके फादर खुश होंगे कि चलो अच्छा है चला गया। हिज पेरेंट्स विल सेज आई, अब उसने कहा सैम ने कि नहीं इसके पेरेंट्स पैसे देंगे। नेक्स्ट, आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन, अब मैं माउंटेन के ऊपर गया एंड लुक्ड अराउंड, और मैंने जायजा लिया ओवर टूवर्ड्स सुमिट, उसी जगह का, उसी छोटे से टाउन का। एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी मतलब उसने कहा कि एक ग्रोह होगा जो कि उसको ढूंढ रहा होगा। सर्च पार्टी मतलब एक लोगों का ग्रोह जो कुछ चीज ढूंढ रहे हो। बट व्हाट आई सॉ वाज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन मैंने देखा कि वहां तो सब सुकून में है, पीसफुल है। परहैप्स सेज आई टू माई सेल्फ इट हैज नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, शायद उनको अब तक पता नहीं चला है कि उनका बच्चा अगवा हो गया है। When I got to the cave, I found Bill backed up against the side of it. Bill उसके बराबर में था, breathing hard, और बड़ी मुश्किलों से सांस ले रहा था Bill. And the boy threatening to smash him. Smash मतलब to kill, के उसको बिल्कुल मार देना, और बॉय जो है वो उसको धमकियां दे रहा था उसको मारने की। मतलब वो डेफिनेटली वो खेल रहे थे। हिम विद अ रॉक, एक रॉक हाफ एज बिग एज अ कोकोनट, और एक उसके हाथ में एक रॉक था, एक पत्थर था जैसे कोकोनट की तरह, और वो उसको धमकियां दे रहा था। ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक, अब उसने कहा कि भाई इस बच्चे ने पता क्या किया, एक बॉइल्ड मतलब गर्म पोटैटो मेरी पीठ पे रखा है। एक्सप्लेन बिल ने बताया। एंड देन स्मैश, और फिर उसको बिल्कुल मसल दिया है विद हिज फुट, अपने लात से। एंड आई हिट हिम, और हिट किया है। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय, अब मैंने उसके हाथ से रॉक ले ली। एंड काइंड ऑफ पैच अप द आर्ग्यूमेंट, और जो उनके दरमियान में आर्ग्यूमेंट हो रहा था उसको खत्म किया। आई विल फिक्स यू सेज द किड टू बिल, किड ने कहा कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। बाय एंड बाय बिल calms down, बिल जो है वो अब सुकून में आ गया। calms down and says, Sam, you won't go away and leave me here alone, will you? तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के इस बच्चे के साथ, क्योंकि ये बच्चा मुझे बार बार सता रहा है, ठीक है ना। I went out and caught that boy and shoot, अब मैं सैम कह रहा है कि मैं बाहर गया और उस बच्चे को मैंने पकड़ा, और and shoot मतलब shoot is a second form of shake, और उस बच्चे को हिलाया until, जब तक his freckles rattled, his freckles उसके जो वो थे, rattle means nervous, उसके जो मतलब वो जब तक नर्वस नहीं हो गया, मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई you have to be a good boy, you don't have to disturb, you don't have to tease, you don't have to become naughty and mischievous, तुम्हें भाई शरारत नहीं करनी है, तुम बहुत शरारत कर रहे हो। If you don't behave, says I will take you straight home, अगर तुम शरारत करोगे तो मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊंगा। Now be good, अब अच्छे हो जाओ। I made him and Bill शेक हैंड्स, अब उसने क्या किया कि मैंने बिल और उनकी दोस्ती करवा दी आपस में। देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम, उसके बाद मैं बिल को साइड में ले गया और उससे कहा आई वाज गोइंग टू पोलर कोव, भाई मैं पोलर कोव जा रहा हूँ, अ लिटिल विलेज 3 miles अवे, जो यहाँ से 3 miles दूर है, टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कॉज, कि हमने जो किडनैपिंग करी उसका असर क्या हुआ उन पे, वो तो देख के आऊँ। जब पहाड़ से देख रहा हूँ तो सब कुछ वहाँ सुकून में कुछ हुआ ही नहीं है, तो लेट्स सी ही वेंट। You know Sam, says Bill, अब बिल क्या कह रहा है, बिल कह रहा है I have stood by you in earthquakes, जब जलजला आया मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था, फायर जब आग लगी मैं तुम्हारे साथ था, जब फ्लड्स मतलब पानी का जो एक तूफान आ जाता है, सैलाब, उसको बोलते हैं फ्लड्स, जब वो आया जब मैं तुम्हारे साथ। एंड साइक्लोन मीन्स समुद्री तूफान आया। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व येट टिल वी किडनैप दैट किड, लेकिन मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं जब से मैंने इस बच्चे को किडनैप किया है। यू वोंट लीव मी लॉन्ग विद हिम, तुम मुझे इसके साथ ज्यादा देर तक नहीं छोड़ोगे, विल यू। नेक्स्ट, आई विल बी बैक सोन, अब मैंने बिल को कहा कि भाई मैं आ जाऊंगा। सेज आई, यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज्ड टिल आई रिटर्न, तुम्हें बच्चे को खुश रखना होगा जब तक मैं आऊं नहीं। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉर्सेट, चलो भाई इस बच्चे के फादर जिनका नाम डॉर्सेट है हम उनको खत लिखते हैं, डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड, और हम बताते हैं कि ये रैंसम कितना और उसको कैसे पे किया जाए। बिल एंड आई रोट इट वाइल रेड चीफ शटर्ड मतलब ऊपर नीचे चढ़ना, शटर्ड अप एंड डाउन गार्डनिंग द केव, मतलब वो इस तरह का बिहेव कर रहा था जैसे वो गार्ड है और वो रखवाली कर रहा है किसकी, केव की, और वो दोनों खत लिख रहे थे। बिल
बिल ने बैक मतलब होता है भीख मांगना, रिक्वेस्ट करना। बिल बैक मी मतलब बिल ने मुझसे रिक्वेस्ट की टेयरफुली, आंसुओं से, टू मेक द रैंसम $1500 इंस्टीड ऑफ 2000। उसने कहा कि भाई जो रैंसम है, जो हम पैसे मांग रहे हैं, उसको 2000 के बजाय 1500 कर दो। सो टू रिलीव बिल आई अग्रीड, क्योंकि जो बिल था वो बच्चे की वजह से बहुत परेशान था। अब चलें पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या खत लिखा। Ebenezer dot said, "We have your boy." हमारे पास तुम्हारा बच्चा है। It is useless for anyone to attempt to find him, और उसको ढूंढना बेकार है। We will only return him if you meet these terms. हम अगर तुमने हमारी ये तमाम जो मांगे हैं पूरी कर दी तो हम उसको रिलीव कर देंगे। We demand $1500, हम $1500 डिमांड कर रहे हैं। The money to be left at midnight, पैसे जो है वो आधी रात को, to the night at the same box as your reply, मतलब तुम आधी रात को पैसे जो है वो पहुंचा देना at the same box की तरफ as your reply, जैसे तुम्हारा आंसर। at the lone trees, मतलब वही दरख्त जो वो बता रहा था, जो माउंटेन से घिरा हुआ था, वहां पे पैसे रख देना। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर, अपना आंसर जो वो मैसेंजर के जरिए भेजना। मतलब उसने ये कहा कि तुम जो हो मतलब उसने इसको गाइड किया कि कहाँ पे आप हमें बताएंगे कि क्या जो हमने खत लिखा है उसको रिप्लाई किया है। एट 8:30 टुनाइट, आज रात 8:30 बजे। इफ यू अटेम्प्ट एनी ट्रिचरी, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, मतलब पुलिस को इन्फॉर्म किया, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तुम अपने बॉय को कभी दोबारा नहीं देखोगे। इफ यू पे द मनी ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, अगर तुमने पैसे दे दिए तो वो बच्चा तुम्हें साथ खैरियत के साथ दे दिया जाएगा। These terms are final, और ये टर्म्स फाइनल है। एंड इफ यू डोंट एक्सीड, और अगर तुमने हमसे अग्री नहीं किया, टू दैम नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्ट, तो मजीद बात नहीं की जाएगी। टू डेस्परेट मैन, ओके, मतलब दो जुनूनी आदमी। नेक्स्ट, आई वॉक टू पोलर कोव, पोलर कोव वही जहां पे वो रहता था, एक छोटा सा टाउन पोलर कोव, एंड सेट राउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर, और मैं वहां पे जाके बैठ गया कहां पे, पोस्ट ऑफिस की तरफ, चैटिंग टू कस्टमर्स, और कस्टमर से बात करने लगा। वन गाय सेज that he hears Sumit is all upset, मतलब पूरा जो सुमित है वो बहुत अपसेट है, on account of elder Dorset's boy having been lost, कि उसका जो बच्चा है डॉर्सेट का वो खो गया है या फिर stolen, अगवा हो गया है। That was all I wanted to know, और यही मैं जानना चाहता था। I posted my letter surreptitiously, मतलब सीक्रेटली मैंने चुपके से अपना जो लेटर है वो पोस्ट किया, एंड केम अवे, और वापस आ गया। When I got back, जब मैं वापस आया, when I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited, मतलब वो दोनों वहां पे मौजूद नहीं थे। कौन? बिल एंड बॉय, वो वहां नहीं थे। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, बिल अपेयर आउट ऑफ द बुशेस, बिल जो है वो झाड़ियों से निकल के आया। बिहाइंड हिम वॉज द किड, और उसके पीछे बच्चा था। स्टेपिंग सॉफ्टली, आराम से उसके पीछे आ रहा था। लाइक अ स्काउट, जैसे कोई सिपाही है। विथ अ ब्रॉड ग्रिन, एक अजीब सी शरारत भरी स्माइल लेके, ग्रिन स्माइल ऑन हिज फेस। बिल स्टॉप, टुक ऑफ हिज हेड, और बिल आया और बिल रुका, और बिल ने अपना कैप उतारा, एंड वाइप हिज फेस विद अ रेड हैंकरची, और लाल रुमाल से उसने अपना पसीना पोंछा। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 feet बिहाइंड हिम, और जो बच्चा है वो रुक गया उससे 8 कदम पहले, मतलब उसके पीछे बच्चा भी आ रहा था। सैम सेज बिल, आई एम सॉरी बट बॉय इज गॉन, मुझे माफ कर दो लेकिन बच्चा भाग चुका है। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसे घर भेज दिया है। आई हैव बीन सबजुगेटेड, मतलब मुझे उसने बहुत परेशान किया है। टू सच ऑफुल टॉर्चर्स, और उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। आई रीच माई लिमिट, और मैं जो है मतलब अब हद हो गई है, बिल्कुल अब बहुत हो गया है, तो मैंने उसको वापस जो है घर भेज। What is the trouble, Bill? I asked, मैंने पूछा क्या हुआ था। I was rode like a horse, मुझे इस तरह चलाया जा रहा था जैसे एक घोड़ा है, मतलब वो बच्चा मेरे ऊपर बैठ गया और मुझे इस घोड़े की तरह चला रहा था। Then I was giving oats, उसके बाद उसने मुझे खाने को जो घोड़े का खाना होता है, oats जो वो दिए। Sand ain't edible, edible मतलब खाने के काबिल। I tell you, Sam, a human can only stand so much, और एक इंसान इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। I takes him down the mountain, मैं उस बच्चे को नीचे ले गया।
ऑन द वे ही किक्स मी, और रास्ते में उसने मुझे लात मारी, ही बाइट्स, उसने मुझे काट लिया, बट ही हैज गॉन, वो जा चुका है, गॉन होम, आई शोड हिम द वे, मैंने उसको रास्ता दिखाया, आई एम सॉरी वी लूज द रैंसम बट इट वॉज ईदर दैट और मी टू द मैड हाउस, इससे बेहतर था कि मैं इससे पहले पागल खाने चले जाऊं, मैंने उस बच्चे को भेज दिया। बिल सेज आई हैव अ लुक बिहाइंड यू, अब उसने पीछे मुड़ के देखा, बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय, उसने बॉय को देखा, एंड लूजेस हिज कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मीन्स कलर, उसकी चेहरे की रंगत ही उड़ गई, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बच्चा उसके पीछे पीछे आ जाएगा, लेकिन बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे ही आ गया, बच्चा उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एंड सिट्स डाउन, अब उसकी चेहरे की रंगत उड़ गई और वो बैठ गया। For an hour, 1 घंटे तक आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, और मैं खौफजदा हो गया कहीं इसको कुछ हो तो नहीं किया बिल को, क्योंकि बिल बहुत परेशान हो गया था बच्चे की वजह से। एंड देन आई रिमेंबर्ड हिम, फिर मैंने बिल को याद दिलाया, वी वुड गेट द रैंसम, हमें पैसे मिलेंगे, एंड बी ऑफ विद इट बाय मिडनाइट, और रात तक हमारी जान इस बच्चे से छूट जाएगी, इफ ओल्ड डॉट सेट पेड अप, अगर वो डॉट सेट पैसे पे कर दे। सो बिल ब्रेस्ड, दिस इज कॉल्ड ब्रेस्ड, ब्रेस्ड मीन प्रिपेयर हिमसेल्फ, तो बिल ने अपने आप को तैयार किया कि चलो आज रात तक का वेट कर लेते हैं। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विद बीइंग कॉट, तो ये मेरी स्कीम थी। द ट्री अंडर विच द आंसर, मैं वेट कर रहा था कि मैंने जो लेटर पोस्ट किया था कि भाई अपने आंसर का जवाब दो, और कहाँ पे करना, 8:30 बजे उस दरख्त के पास जो है अपना आंसर ड्रॉप कर देना। एंड लेटर द मनी, और फिर पैसे, वॉज टू बी लेफ्ट वॉज इन अ वाइड ओपन एरिया, वो एक बहुत खुला इलाका था। इफ एनी पुलिस केम आई वुड सी दैम अ माइल ऑफ, तो अगर पुलिस भी आती तो मैं उन्हें बहुत दूर से देख लेता। एट 8:30 आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री, तो मैं छुप गया 8:30 बजे, एंड वेटिंग, और फिर मैं वेट करने लगा कि देखते हैं कोई आता या नहीं आता। एग्जैक्टली ऑन टाइम, बिल्कुल वक्त पे, अ हाफ ग्रोन बॉय, एक बच्चा आया, राइड्स अप द रोड ऑन अ साइकिल, एक बाईसाइकिल पे, स्लिप में ड्रॉप अ नोट इनटू द बॉक्स, उसने बॉक्स के अंदर एक नोट छोड़ा, एंड पेडल्स अवे अगेन, और फिर वापस चला गया। आई गॉट द नोट, मैंने नोट लिया, एंड वॉज बैक एट द केव सून, और फिर केव के पास आया। आफ्टर बाय द लैंटर्न, मतलब लालटेन मेरे हाथ में थी। आई रेड इट टू बिल, और मैंने पढ़ के सुनाया बिल को। अब क्या लिखा था जरा गौर से सुनिएगा, और दिस इज वेरी गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, यू ऑल विल एंजॉय एंड यू ऑल विल बी वेरी मच सरप्राइज, और आप लोग हैरान हो जाएंगे उसके फादर ने लिखा क्या है। टू डेस्परेट मैन, मतलब उनको लिख रहा है ना, दो जो है बिल और सैम। जेंटलमैन आई रिसीव योर लेटर, मैंने तुम्हारा लेटर रिसीव किया। आई थिंक द रैंसम यू आस्क, जो रैंसम तुम लोग मांग रहे हो फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन, मेरे बच्चे को वापस करने के लिए, इज अ लिटिल हाई, वो थोड़ा ज्यादा है। I hereby means in the result, उसके नतीजे में, I hereby make you a counter proposition, इसके बदले में मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, मतलब तुमने जो पैसे मांगे $1,500 वो तो बहुत ज्यादा मांगे, चलो अब मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं which I am sure you will accept, और मुझे 100% श्योर हूं कि तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट करोगे। You pay me $250, तुम लोग मुझे दो, कितने, $250 मुझे दो इन कैश में, एंड आई अग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स, और मैं राजी हो जाऊंगा अपना बच्चा तुम लोगों से वापस लेने के लिए। मतलब जो वो लोग पहले मांग रहे थे पैसे $1,500, अब वो बोला नहीं तुम लोग मुझे पैसे दो और मेरे बच्चे से अपनी जान छुड़ाओ, क्योंकि उसको पता था कि उसके बच्चे ने उनकी नाक में दम कर दिया होगा। बट ब्रिंग हिम एट मिडनाइट, लेकिन रात में लाना उस बच्चे को, सो दैट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू, तो नेबर्स तुम्हें रोकेंगे नहीं। वेरी रिस्पेक्टफुली, तुम्हारा बहुत ही इज्जत के साथ, एबेनेजर डॉर्सेट। तो देखा आप लोगों ने कि अब वो फादर समझ चुका था कि डेफिनेटली वो जो किडनैपर्स हैं वो मेरे बच्चे से बहुत परेशान होंगे, तो मैं अब उनसे पैसे डिमांड करूंगा। द चीक आई बिगेन, अब उसने जोर से चीखा ना, आई बिगेन, बट आई ग्लैंस एट बिल, और मैंने बिल को देखा, एंड हेजिटेटेड, और मैं घबरा गया। हिज आईज वर प्लीडिंग विद मी, yes, so I said his eyes were pleading with me. Pleading means his eyes were pleading just like to ask something very strongly, कि वो उसकी आंखें सवाल कर रही थी। Sam says he, we have got the money, क्या हमें पैसे मिल गए हैं,
मतलब वो समझे कि शायद पैसे पहले मिल गए. दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, ये बच्चा मुझे पागल कर देगा. आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज जेनरस, शायद मिस्टर डॉर्सेट जो है वो बहुत ही सखी हैं फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफर, कि उन्होंने हमें ऐसी ऑफर दी कि हम इतने कम पैसे पे करें और बच्चे से जान छुड़ाएं. डोंट लेट द चांस गो, इस चांस को जाने मत दो, इस मौके को जाने मत दो. ऑनेस्टली बिल सेज, वाकई बिल ने कहा. He has got on my nerves too, उसने मेरे नाक में दम कर दिया है. We will take Dorset's offer and make our getaway, हम जान छुड़ाएंगे इस बच्चे से और डॉर्सेट की ऑफर को कबूल करेंगे. That midnight we got him to go by saying that his father had bought a new toy for him. अब हमने कहा उस बच्चे से कि रात को कि आपके फादर एक नया खिलौना लाए हैं और हम उसको दिखाने के लिए आपको लेके जा रहे हैं. And we were going to play with the new toys the next day, और हम अगले दिन उन टॉयज से खेलेंगे. Just at the moment when I should have been collecting a ransom, बिल्कुल उस वक्त जब मुझे पैसे लेना चाहिए था. बिल वॉज गिविंग $250, बिल मुझे पैसे दे रहा था. गिविंग $250 टू डॉट्स, हम बल्कि लेने के बजाय पैसे दे रहे थे. व्हेन द किड फाउंड आउट वी वर गोइंग टू लीव हिम, मतलब जब हमने बच्चे को जब हमें बच्चा मिला, सो वी वर गोइंग टू लीव हिम, अब हम उसे छोड़ने वाले थे. एज फास्ट इन हिमसेल्फ, बहुत तेजी से. एज टाइट एज अ लीच टू बिल्स लैग, अब लेकिन बच्चे को हम छोड़ने वाले थे लेकिन बच्चे ने हमारा बिल्स का पाँव पकड़ लिया. हिज फादर प्लीडेड हिम अवे देयर. ओके, हिज फादर व्हाट ही डिड. Yes, my dear. So we were discussing about this. Will was giving $250 to Dorset. हाँ, so his father peeled him away there. Okay, मतलब उसके फादर उसको जोर से पीछे खींच रहे थे. पील का मतलब होता है खाल उतारना, जैसे पील मतलब छिलका उतारना, तो पील्ड हिम अवे यहाँ पे यूज किया गया है कि वो उसको पीछे खींच रहे थे. हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, आज बिल ने पूछा कि आप इस बच्चे को कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हैं. तो फादर ने कहा, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी, मैं अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना मैं पहले था. सेज ओल्ड डॉर्सेट, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि 10 मिनट तक इस बच्चे को पकड़ के रख सकता हूँ. इनफ, says बिल ने कहा इनफ है हमारे भागने के लिए. इन 10 मिनट्स आई शैल क्रॉस द कंट्री, 10 मिनट के अंदर तो मैं पूरा मुल्क क्रॉस कर दूंगा. एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर, और कैनेडियन बॉर्डर तक पहुंच जाऊंगा. एंड एज डार्क एज इट वॉज, एंड एज फैट एज बिल वॉज, बिल काफी मोटा था. एंड एज गुड अ रनर एज आई एम, लेकिन वो ऐसे भाग रहा था जैसे मैं भागता हूँ. मतलब सैम काफी दुबला था और जो दूसरा उसका बिल दोस्त था जिसको बच्चे ने बहुत तंग किया था वो बहुत मोटा था, लेकिन वो ऐसे भाग रहा था जैसे सैम जैसे बहुत दुबला हो. He was a mile and half out of summit before, और वो बहुत आगे चला गया. I could catch him with him there. Okay, और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था. So guys, I hope you people enjoyed the story. उम्मीद है कि आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा. और कितनी ज़बरदस्त स्टोरी थी कि बच्चे के उन्होंने जो है एक बच्चे को पकड़ा, लेकिन बच्चों ने उसकी नाक में ऐसा दम कर दिया कि उनको लेने के बजाय देने पड़ गए. Guys, I hope you enjoyed and the last one. Thank you very much for watching this video. You people are requested to subscribe so you will keep getting the new videos. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.